اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمانبرداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل علیہ السلام، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، یہ سواری ایسی سواری آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام باندی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دھولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یا جبریل قبل قدمیاں، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ लिए जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सफर की तैयारी शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानंद चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कुंती थी, टांगे सब ज़मुर्रद, दो मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बेशती ज़ैन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब अवेज़ा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ थे। फिजा फरिश्तों की दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदे कामल को अपनी निशानियां दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिलनवाज थी कि जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ियों, बेआबोगया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बता में पहुंची, जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, यह आपकी हिजरतगाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है। देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ जाता है, जहाँ कुदसियों का जमो गफीर सलामी के लिए मौजूद है और तकरीबन 1,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सैने हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं, क़ुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। तमाम अंबिया सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया आपकी इक्तदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया कराम सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुक़द्दस ने आज तक ऐसा दिलनवाज मंजर उरू परवर समा नहीं देखा होगा। वहां से फार होते ही दुरूद व सलाम से फिजा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमुट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहां निगाह की इंतहा होती वहां बुराक अपना पहला कदम रखता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा, कौन है? जवाब दिया, जिब्रील। दरबान ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरबान ने कहा, मरहबा, दरवाजे उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामदीद कहा।
दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुंचे जहां कलम कुदरत के चलने की आवाज आ रही थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा वो मुकाम है जहां मखलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, उनके दीदार की हमें इजाजत अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांक लिया। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार और तजलियात मेरे पैरों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और अजमत का अंदाजा लगाइए कि जहां शहबाज सदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुल सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुल सिरात से गुजर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को छोड़कर तन्हा अनवार तजलियात के मनाज़िल तय करते गए। मवाहिबुल दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फिर उस जलवा हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आलम मकां के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुंचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में यूं बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हो गया। फिर जलवा हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कमानों की मिकदार फासला रह गया या इससे भी कम। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब से मुशर्रफ हुए, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने कुर्ब से नवाजा। जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में पहुंचे तो इरशाद फरमाया, बस उस खास मकाम मुकर्रब व विसाल पर उस अल्लाह ने अपने अहद महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। यह सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाना आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर को अपनी कुदरत की निशानी दिखाने के लिए बुलवाया तो इसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, उस रब्बे कायनात ने इस कारखाने आलम को यकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चीज़ों के जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहर्रक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था वो सोता रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। गर्ज ये कि जमाने की हरकत बंद हो गई।
जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात एक तवील सफर करके जमीन पर तशरीफ लाए तो करहाने आलम अल्लाह के हुक्म से फिर चलने लगा। हर शय असरनो मराइल को तय करने लगी। चांद सूरज अपनी मनाजिल तय करने लगे। हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लगे। गर्ज ये कि जो चीजें सुकून में आ गई थी वो दोबारा हरकत करने लगी। बिस्तर मुबारक की हरारत अपने दर्जात तय करने लगी। हुजरे मुबारक की जंजीर हिलने लगी। कायनात में ना कोई तगैर आया और ना ही किसी को एहसास तक हुआ। तमाम अहले ईमान ने इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना और उसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, ए अबू बकर, तूने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? क्या यह बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को वो बैतुल मुक़द्दस गए और आसमानों का सफ़र तय करके अभी दोबारा आ गए? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी जुबान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। कुफार बोले, अबू बकर, तुम खुलम खुला ऐसी खिलाफत अकल बात क्यों सही समझते हो? इस आशिक सादक ने जवाब दिया, मैं तो इससे भी ज्यादा खिलाफ अकल बात पर यकीन रखता हूँ। उसी दिन से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दरबार नबूवत से सदीक का लक़ब मिला।